Hello, listening friends. We are delighted that you were able to join us once more. नमस्कार श्रोता मित्रों, हमें खुशी है कि आप एक बार फिर से हमारे साथ शामिल हो पाए। We have been talking about the cross of the Lord Jesus Christ. हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में बात करते आ रहे हैं And we're going to continue to talk about the cross of Jesus Christ. और हम यीशु मसीह के क्रूस पर बात करना जारी रखेंगे। But I won't begin by telling you that debt is an acute problem worldwide. लेकिन मैं आपको ये बताते हुए शुरू करना चाहता हूँ कि कर्जा पूरे संसार में एक गंभीर समस्या है। Not only countries are in debt, but also individuals are in debt. न केवल राष्ट्र कर्जे में हैं, लेकिन बहुत लोग व्यक्तिगत कर्जे में भी हैं। Many people live in debtors' prison, which they have created for themselves. बहुत सारे लोग कर्जाइयों की जेल में जीते हैं, जो उन्होंने अपने लिए खुद बनाई है। Debt produces misery, stress, and worry. कर्जा संकट, निराशा और चिंता पैदा करता है। And the root cause of debt problem is found in Luke 12:15. और कर्ज की समस्या की जड़ लूका 12:15 में मिलती है। Jesus said, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possessions." यीशु ने कहा, सचेत रहो, हर तरह के लालच से अपनी चौकसी कर। मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। In the world, there are basically three categories of people. संसार में असल में 3 तरह के लोग हैं। There are people who have things, वो लोग जिनके पास वस्तुएं हैं, and people who do not have anything, और वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, and those who have not paid for what they have. और वो लोग जिन्होंने उसकी कीमत नहीं चुकाई जो उनके पास है। But because of the worldwide debt, many children are born today with a debt hanging around their necks. लेकिन विश्वव्यापी कर्जे के कारण आज बहुत सारे बच्चे गले में कर्ज लटकाए हुए पैदा होते हैं। But I want to talk to you today about another type of debt that each child in the world is born with. लेकिन आज मैं आपसे एक दूसरी तरह के कर्जे के विषय में बात करना चाहता हूं, जो संसार में हर बच्चा साथ लेकर पैदा होता है। Every child that is born into the world has a spiritual price tag of debt hanging around his or her neck. प्रत्येक बच्चा जो संसार में पैदा होता है, उसके गले में आत्मिक कर्ज की पट्टी लगी हुई होती है। And that tag says, sinner by birth. और वो पट्टी कहती है, जन्म से पापी। Later in life, the tag reads, sinner by practice. जीवन में कुछ समय बाद वो पट्टी कहती है, कर्मों से पापी। The Bible teaches that each precious, cute, beautiful baby is born in sin. बाइबल सिखाती है कि प्रत्येक सुंदर, बहुमूल्य, खूबसूरत बच्चा पाप में पैदा होता है। Every one of us is born with an eternal debt that we cannot pay. हम में से प्रत्येक अनंत कर्ज के साथ पैदा होता है जो हम चुका नहीं सकते। Please listen to me, my listening friends. मेरे श्रोता मित्र, कृपया मेरी बात सुनिए। The Bible says that the wages of sin is death. बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, And that price could never be paid. और वो मूल्य कभी नहीं चुकाया जा सकता। It can never be paid by our good works. ये हमारे अच्छे कामों से कभी नहीं चुकाया जा सकता। It could never be paid by our good efforts. ये हमारी अच्छी कोशिशों से कभी नहीं चुकाया जा सकता। The only way for me to escape from my share of the condemnation was for God the Son to bear up the condemnation on the cross. दोष के मेरे भाग से मेरे बच निकलने का एकमात्र रास्ता ये था कि परमेश्वर पुत्र क्रूस पर उस दोष को उठा ले। We saw in the last message that the idea of substitutionary sacrifice was God's idea. पिछले संदेश में हमने देखा कि वैकल्पिक बलि का विचार परमेश्वर का विचार था। God's substitutionary sacrifice began after Adam and Eve rebelled against him. परमेश्वर का वैकल्पिक बलिदान आदम और हवा की उसके विरुद्ध बगावत के बाद शुरू हुआ। And God had to shed the blood of an innocent lamb in order to make a temporary covering for their sin. और उनके पाप को कुछ समय के लिए ढांपने के लिए परमेश्वर को एक निर्दोष मेमने का लहू बहाना पड़ा। Yet all of this
was only foreshadowing of the cross of Christ. फिर भी ये सब मसीह के क्रूस की पूर्व छाया थी। All of this was only a symbol of the real thing which took place on the cross of Calvary. ये सब कुछ उस असल घटना का एक निशान मात्र था जो कलवरी के क्रूस पर हुई। There in Calvary, वहां कलवरी में God in human flesh became the ultimate substitutionary sacrifice. परमेश्वर मानव देह में अद्भुत वैकल्पिक बलिदान बना। परमेश्वर मनुष्य के बुरे सपने का समाधान बन गया। On a human level, the Bible tells us that there were a number of people who were involved in sentencing Jesus to the cross. मानवीय स्तर पर बाइबल हमें बताती है कि यीशु को क्रूस की सजा दिलवाने में बहुत सारे लोग शामिल थे। First, पहला, Judas handed him over to the priests out of greed. यहूदा ने लालच करके उसे याजकों को पकड़वा दिया। Secondly, दूसरा, the priest handed him over to Pilate out of envy. याजक ने घृणा से उसे पिलातुस के हवाले कर दिया। Thirdly, तीसरा, Pilate handed him over to the soldiers out of cowardice and fear. पिलातुस ने भय और कायरता से उसे सैनिकों के हाथ में दे दिया। And fourthly, और चौथा, the soldiers crucified him. सिपाहियों ने उसे क्रूस चढ़ा दिया। Yet when Jesus was hanging on the cross, in the midst of his agony, he prayed, "Father, forgive them all, for they know not what they're doing." फिर भी जब यीशु अपनी असीम पीड़ा में क्रूस पर लटक रहा था, उसने प्रार्थना की, पिता उन सब को क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। But on a spiritual level, लेकिन आत्मिक स्तर पर Jesus did not die the death of a martyr. यीशु एक शहीद की मौत नहीं मरा। On the contrary, इसके विपरीत Jesus went to the cross deliberately. यीशु इच्छापूर्वक क्रूस चढ़ा। Jesus told them from the beginning that he came from heaven so that he may go to the cross. यीशु ने आरंभ से ही उन्हें बता दिया था कि वो स्वर्ग से इसीलिए आया ताकि वो क्रूस पर जा सके। So, who delivered Jesus up to die? तो यीशु को मृत्यु के लिए किसने पकड़वाया? Not Judas for money, पैसे के लिए यहूदा ने नहीं, not Pilate for fear, न भय से पिलातुस ने, not the priests of envy, न याजकों ने घृणा के कारण, but the Father delivered him for love. लेकिन पिता ने प्रेम के कारण उसे पकड़वाया। Jesus went voluntarily for love. यीशु प्रेम के कारण इच्छा पूर्वक गया। Love for you and for me, so you and I can look at the cross and say this: आपके और मेरे लिए प्रेम के कारण, ताकि मैं और आप क्रूस की ओर देखकर कह सकें, I sent him to the cross. मैंने उसे क्रूस पर भेजा। My sins sent him to the cross. मेरे पापों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया। The debt that you and I are born with has only one punishment, and it is eternal death. वो कर्ज जो आप और मैं साथ लेकर पैदा हुए हैं, उसकी केवल एक ही सजा है, और वो है अनंत मृत्यु। And the only man that was born without that debt of sin hanging around his neck was Jesus of Nazareth. और जो एकमात्र मनुष्य जन्म के साथ ही गले में लटकने वाले पाप के कर्ज के बगैर पैदा हुआ, वो था नासरत का यीशु। He had no sin of his own nature. उसके अपने स्वभाव में कोई पाप नहीं था। If there's only one human being that does not qualify for the wages of sin and the punishment of sin, it was the Lord Jesus Christ. यदि कोई एकमात्र ऐसा मनुष्य है जो पाप की मजदूरी के और पाप के दंड के योग्य नहीं है, तो वो था प्रभु यीशु मसीह। And yet, because of his sinlessness, और फिर भी उसकी पाप रहितता के कारण, he was the only one who can truly qualify to take my place and your place and pay your debt and my debt. वही एक था जो आपके और मेरे स्थान पर आपका और मेरा कर्ज चुकाने के योग्य था। Please listen carefully to what I'm going to tell you. कृपया ध्यानपूर्वक सुने जो मैं आपको बताने वाला हूँ। This whole notion of substitution, where one person takes the place of another, is always considered a noble action.
विकल्प के संपूर्ण विचार को जहां एक व्यक्ति दूसरे का स्थान लेता है, हमेशा एक महान कार्य समझा जाता है। But on the cross, God in Christ substituted himself for you and for me. लेकिन क्रूस पर मसीह में परमेश्वर ने अपने आप को मेरे और आपके लिए एक विकल्प बना दिया। Let's focus just for a few minutes on 4 imageries that the Bible tells us that the cross has accomplished. आइए 1 मिनट के लिए उन 4 अलंकार योजनाओं पर ध्यान दें जो बाइबल हमें बताती है कि क्रूस ने पूर्ण की। First, पहली, propitiation. पश्चाताप। It is the imagery of the temple and sacrifice. ये अलंकार योजना है मंदिर और बलिदान की। Second, दूसरी, redemption. छुटकारा। It is the imagery of the marketplace. ये अलंकार योजना है बाजार के स्थान की। Thirdly, तीसरी, justification. दोष मुक्ति। Is the imagery of the law court. ये कानून की अदालत की अलंकार योजना है। Fourthly, चौथी, reconciliation. मेल मिलाप। The imagery of the home and the family. घर और परिवार की अलंकार योजना। Let us look at those very briefly. आइए इन्हें संक्षेप में देखें। The Bible said that when Jesus died on the cross, he satisfied the justice of God. बाइबल कहती है कि जब यीशु क्रूस पर मरा, उसने परमेश्वर के न्याय को पूरा किया। God's holiness and righteousness demanded justice. परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता ने न्याय की मांग की। And justice is our eternal condemnation. और न्याय हमारा अनंत काल का दोष है। When the Bible speaks of the wrath of God, जब बाइबल परमेश्वर के क्रोध के विषय में बात करती है, it does not mean that God is a temperamental tyrant or who flies off the handle at the slightest provocation. तो इसका ये अर्थ नहीं है कि परमेश्वर कोई अत्याचारी प्रवृत्ति वाला एक राजा है जो जरा से उकसाने से डंडा लहराने लगता है। That is a false perception of God. ये परमेश्वर के विषय में गलत धारणा है। His anger is neither malicious nor spiteful or vindictive. उसका क्रोध ना तो द्वेषपूर्ण है, ना ईर्ष्या से, ना ही बदला लेने की भावना वाला है। God's judgment is never unpredictable. परमेश्वर का न्याय कभी भी ऐसा नहीं है जिसके विषय में पहले से कुछ ना कहा जा सके। It is only provoked by evil and evil alone. ये बुराई और केवल बुराई से ही भड़कता है। In fact, the gospel tells us again and again that God is the one who went out of his way to exercise grace. बल्कि सुसमाचार बार बार हमें बताता है कि परमेश्वर ने अपने तरीके से हटकर हम पर अनुग्रह किया। God is the one who did what no one could do. एक परमेश्वर ही है जिसने वो किया जो और कोई नहीं कर सकता। It was God's love that compelled him to watch his son carry my sin and yours on his sinless body. ये परमेश्वर का प्यार ही था जिसने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपने पुत्र को मेरे और आपके पाप अपने पाप रहित शरीर पर उठाते हुए देखे। Don't ever make the mistake of thinking that God loves us because Christ died for us. ये सोचने की गलती कभी ना करें कि परमेश्वर हमसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि यीशु हमारे लिए मरा। No. नहीं, Christ died for us because God loved us. यीशु इसलिए मरा क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। On the cross, not only did Christ satisfy God's justice, but secondly, he redeemed us. क्रूस पर मसीह ने केवल परमेश्वर के न्याय को ही संतुष्ट नहीं किया, लेकिन दूसरा उसने हमें छुड़ाया भी। And in redeeming us from sin, Jesus freed us from the dominion of sin. और हमें पाप से छुड़ाकर यीशु ने हमें पाप के नियंत्रण से छुड़ाया। My listening friends, I want to ask you this. मेरे श्रोता मित्र, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Are you addicted to alcohol? क्या आप शराब के आदी हैं? Are you addicted to drugs? क्या आप नशीली दवाओं के आदी हैं? Are you addicted to pornography? क्या आप अश्लीलता के आदी हैं? Are you addicted to love of money? क्या आप पैसे के प्रेम के आदी हैं? I have good news for you today. मेरे पास आज आपके लिए अच्छी खबर है। Redemption by the cross means that freedom is yours if you want it. क्रूस के द्वारा छुटकारे का अर्थ है कि स्वतंत्रता आपकी है यदि आप इसे पाना चाहें। You notice I said if you want it?
आप ध्यान दें, मैंने कहा यदि आप इसे पाना चाहें। Jesus wants to set you free, but you have to be willing to let him. यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहता है, लेकिन आपको उसे ऐसा करने की अनुमति देनी होगी। If you are born again believer, you are owned by God 3 times over. यदि आप एक नया जन्म पाए हुए विश्वासी हैं, तो परमेश्वर आपका 3 गुना अधिक स्वामी है। By creation, God owns you. आपकी सृष्टि करने के कारण आप उसके हैं। By redemption, God owns you. आपके छुटकारे से आप उसके हैं। By indwelling of the Holy Spirit, God owns you. पवित्र आत्मा के आपके अंदर निवास के कारण आप उसके हैं। My listening friend, listen carefully to what I'm going to tell you. मेरे श्रोता मित्र, मैं जो आपको बताने वाला हूं, कृपया बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। Sin and Satan have no business holding you under their grip or enslaving you or dominating you. पाप और शैतान का कोई अधिकार नहीं है कि वो आपको अपनी पकड़ में रखे, आपको दास बनाए या आप पर नियंत्रण करे। You are bought and paid for. Give your owner a chance to free you up. आप खरीद लिए गए हैं और आपकी कीमत चुका दी गई है। अपने स्वामी को आपको स्वतंत्र करने का एक अवसर दीजिए। You are Jesus' property. Live like you are. आप यीशु की संपत्ति हैं, उसी प्रकार जिएं। But if you are a person who have never committed your life to Jesus Christ, लेकिन यदि आप एक ऐसे मनुष्य हैं जिसने कभी यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं सौंपा है, the one who died for you, उसे जो आपके लिए मरा, you can do that today. आप आज ही ऐसा कर सकते हैं। Now let's summarize this again. अब आइए फिर से इसे संक्षेप में देखें। First, पहले, on the cross, Jesus satisfied God's justice. क्रूस पर यीशु ने परमेश्वर के न्याय को संपूर्ण किया। Secondly, दूसरा, on the cross, क्रूस पर Jesus redeemed us from the slavery of sin. यीशु ने हमें पाप की गुलामी से छुटकारा दिया। Then we come thirdly, फिर हम तीसरे विचार पर आते हैं। on the cross, Jesus justified us. क्रूस पर यीशु ने हमें दोष मुक्त कर दिया। Justification is an act of gracious justice. दोष मुक्ति दयालु न्याय का कार्य है। When you come to Jesus Christ in repentance and in faith and say, Lord, I have sinned, जब आप पश्चाताप में और विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं, प्रभु मैंने पाप किया है, the courts of heaven will say, guilty as charged. स्वर्ग की अदालतें कहेंगी, दोष ठीक पाए गए। Because God never winks at sin. क्योंकि परमेश्वर कभी भी पाप पर से नजर नहीं हटाता। But then Jesus comes in and he says, I paid for his crime. लेकिन फिर यीशु अंदर आकर कहता है, मैंने उसके अपराध की कीमत चुका दी है। And the Holy Spirit says, hallelujah, you are set free. और पवित्र आत्मा कहता है, हालेलुया, तुम स्वतंत्र कर दिए गए हो। And that is why the Apostle Paul could confidently say, और इसीलिए प्रेरित पौलुस आत्मविश्वास से कह पाया, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. जो यीशु मसीह में हैं, उन पर कोई दंड किया गया नहीं है। Why not, Paul? क्यों नहीं पौलुस? Because on the cross God did for us what we could never do for ourselves. क्योंकि क्रूस पर परमेश्वर ने हमारे लिए वो किया जो हम अपने लिए कभी नहीं कर सकते। Because Jesus was condemned, we were set free. क्योंकि यीशु को दंड मिला, इसी कारण हम स्वतंत्र हुए। Because Jesus died, we shall live forever. क्योंकि यीशु मरा, इसी कारण हम सर्वदा जिएंगे। Then I come to the fourth and the last. फिर मैं चौथे और अंतिम विचार पर आता हूँ। On the cross, we are reconciled to God the Father. क्रूस पर हम परमेश्वर पिता से पुनः मिलाए जाते हैं। It is the imagery of the house and home. ये घर और परिवार की अलंकार योजना है। You and I were at enmity with God. आप और मैं परमेश्वर के साथ शत्रुता में थे। He demanded perfect obedience to the law, and we could not obey him. उसकी मांग थी कि हम उसके नियमों की संपूर्ण आज्ञाकारिता करें, और हम उसकी आज्ञाकारिता नहीं कर पाए। Until Jesus met all these demands, peace with God was impossible.
जब तक यीशु ने इन शर्तों को पूरा नहीं किया, हमारी परमेश्वर के साथ शांति होना नामुमकिन था। And because Jesus called his Father Abba, he qualified us to do the same. और क्योंकि यीशु ने पिता को अब्बा पुकारा, उसने हमें भी ऐसा ही करने के योग्य बना दिया। In fact, it was God who was reconciling us to himself through his Son, the Lord Jesus Christ. बल्कि ये परमेश्वर ही था जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने आप से हमारा पुनः मिलाप करवा रहा था। What a deal. क्या समझौता है। Now, here are the four things that we must remember that the cross reminds us of. ये हैं वो चार बातें जो क्रूस हमें स्मरण दिलाती है और जिन्हें हमें अवश्य याद रखना चाहिए। 1. पहली, The cross satisfied God's justice and wrath. क्रूस ने परमेश्वर के न्याय और क्रोध को संतुष्ट किया। 2. दूसरी, The cross redeems us by setting us free from the captivity of sin. क्रूस हमें पाप की गुलामी से स्वतंत्र करके छुटकारा देती है। 3. तीसरी, The cross justifies us by his grace. क्रूस हमें अपने अनुग्रह से धर्मी ठहराती है। 4. चौथी, The cross reconciles us to God and put an end to our enmity with God. क्रूस परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप करवाती है और परमेश्वर के साथ हमारी शत्रुता को समाप्त करती है। So, as I conclude, I'm going to ask you that question again. तो समाप्त करते हुए मैं फिर से आपसे वही प्रश्न पूछता हूं, Who crucified the Lord? प्रभु को क्रूस किसने चढ़ाया? We did. हमने चढ़ाया। I was there with all of my shame and guilt, plotting and scheming, betraying and handing him over to be crucified. मैं अपनी पूरी शर्म, दोष, योजनाएं बनाता, युक्ति करता, विश्वासघात करता और क्रूस चढ़ाए जाने के लिए उसे पकड़वाता हुआ वहीं पर था। So were you. ऐसे ही आप भी वहीं थे। You were there. आप वहां पर थे। But I'm also here washed by his blood. लेकिन मैं भी यहां पर हूं उसके लहू से धुला हुआ। I have been redeemed by his cross. मैं उसकी क्रूस के द्वारा छुड़ा दिया गया हूं। I have been justified by his grace. मैं उसके अनुग्रह से धर्मी ठहराया गया हूं। I have been reconciled to the Father through the Son. मैं पुत्र के द्वारा पिता से पुनः मिलाया गया हूं। What about you? आपके विषय में क्या है? If you have not come to the Lord Jesus Christ, I invite you to come to him today. यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए हैं, मैं आज आपको उसके पास आने के लिए आमंत्रित करता हूं। If you could say that I have never understood the cross, but now I do. यदि आप कह सकते हैं कि मैंने क्रूस को कभी नहीं समझा लेकिन अब समझता हूं, The hand of God is open to welcome you, saying, Come to me. तो परमेश्वर का हाथ ये कहते हुए आपके ऊपर है कि मेरे पास आओ। It is my urging of you that you will do that today. आपके लिए ये मेरा निवेदन है कि आप आज ही ऐसा करें। And then write to us and tell us that you have done that. और फिर हमें लिखें और बताएं कि आपने ऐसा किया है। Until then, I pray for God's richest blessing. अगले समय तक मैं परमेश्वर की उत्तम आशीष के लिए प्रार्थना करता हूं।